السلام علیکم، آداب۔ زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد شہباز۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما نے جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے پہلوانوں کی حمایت۔ کہا، ہم اس وقت جشن مناتے ہیں جب یہ ملک کے لیے میڈلز لاتے ہیں، یہ انصاف کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تلنگانہ میں سرمایہ کاری کے لیے بہترین مواقع، ریاست کی 9 سالوں میں حیرت انگیز ترقی، تارک راما کا بیان۔ مرکزی وزیر ثقافت جی کشن ریڈی نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر گنگا پشکرلا یاترا پوری کاشی ایودھیا بھارت گورو ٹورسٹ ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر کیا روانہ۔ وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کی سربراہ وائی شرمیلا کا بیان۔ کہا، حالیہ چند دنوں کے دوران ریاست کے کئی اضلاع میں ہوئے بے موسم بارش کے نتیجے میں ریاست بھر میں 9.50 لاکھ ایکڑ فصلوں کو ہوا نقصان۔ نرمل کے ایک گھر میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں شادی کے لیے رکھا گیا سامان جل کر خاکستر۔ تلنگانہ میں بی جے پی فرقہ پرستی کو دے رہی ہے ہوا۔ تلنگانہ کے نئے سیکریٹریٹ کی نئی عمارت کی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، یہ سیکریٹریٹ ہے یا مسجد۔ شہر حیدرآباد اور مضافات کے کئی علاقوں میں آج صبح گرج و چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش کے سبب ایک 4 سالہ بچی کی ہو گئی موت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما نے جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے پہلوانوں کی حمایت کی ہے۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم تارک راما نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، ہم اس وقت جشن مناتے ہیں جب یہ ملک کے لیے میڈل لاتے ہیں۔ اب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان سے یگانیت کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ یہ انصاف کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ریسلنگ فیڈریشن کے سربراہ کے خلاف جنسی ہراسانی کے سنگین الزامات کی غیر جانبدارانہ جانچ کرتے ہوئے انصاف کیا جانا چاہیے۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن کے تارک راما نے کہا کہ تلنگانہ میں سرمایہ کاری کی وسیع مواقع ہیں۔ انہوں نے کہا، گزشتہ 9 سالوں میں ریاست نے حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر ریاستیں تلنگانہ میں نافذ اسکیمات کی نقل کر رہی ہے۔ وزیر موصوف نے ریاستی وزراء نرنجن ریڈی اور ٹی سرینیواس یادو کے ساتھ حیدرآباد HICC میں فوڈ کنکلیو 2023 کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ریاست میں 5 انقلاب آئے۔ انہوں نے کہا، تلنگانہ ہندوستان میں چاول کے مرکز کے طور پر ترقی کر رہا ہے۔ تلنگانہ ہندوستان کی پولٹری کا دارالحکومت بن گیا ہے۔ حکومت باغبانی اور ڈیری کے شعبوں کو بھی فروغ دے رہی ہے۔ ریاست میں ایک زرعی یونیورسٹی، ایک ہارٹیکلچر یونیورسٹی اور ایک ویٹرنری یونیورسٹی قائم کی گئی ہے۔ تلنگانہ حکومت پچھلے 5 سالوں میں بڑے پیمانے پر فوڈ پروسیسنگ یونٹس کو فروغ دے رہا ہے۔ ملک اور بیرون ملک کے صنعت کار اس شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ تلنگانہ حکومت دیہی علاقوں میں بڑے پیمانے پر فوڈ پروسیسنگ یونٹس قائم کرنے کے لیے مساعی کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ صنعتی پالیسی TSI پاس کا مظاہرہ کافی بہتر ہے اور ریاست میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے کسی سے براہ راست ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ Good evening. Thank you to all the knowledge partners for their active participation in the food conclave. This is the first ever time we have attempted this, because we wanted to see what level of interest and what level of commitments we would get from the industry and from also various knowledge partners and from various thought leaders who have participated. From whatever I've learned, in fact, since morning, ever since I left the dais here, I've been having a lot of one-on-one meetings, and they were all back-to-back till now. So I guess with the kind of success we've had, a new aqua hub being launched, India's largest for sure, in 370 acres, and also with the sort of investment commitments that we have received today. More than 7,000 crores worth of investment commitments that have received today, and in various sectors, not just in one sector, but in aqua, in dairy, in agro-processing and allied sectors. Really, the total investment size is 7,218 crores to be precise. And the total direct employment is 58,458. That would be created by way of these investment opportunities. Now, the range of products is what was heartening. In fact, starting from oil palm
oil palm cultivation and how backward linkages with farmers can help process and also reduce India's dependence on importing edible oils. It's a win-win situation for everyone, including the consumers, the farmers, the industry, employment, etc. Also, what was even more heartening was success stories from a rural district like Mahbubabad, where the two lipid-based plants, mirchi, primarily using mirchi consumers and also leveraging the strength of the self-help group women. They've been able to scale up from 50 crore to 400 crores in a span of very, very short time, I think 3 years. So these are the kind of heartening success stories which make all the efforts that have gone into this truly welcoming and truly fruitful. I sincerely thank, of course, our knowledge partners, the media, and everybody else who's been very, very supportive. I would like to compliment my team, Principal Secretary Jayesh Ranjan. I would like to compliment our Director Food Processing, Akhil Gawar, and his entire team. He works with a lot of very, very strong team. Sushma, Sachi, and everybody else who's part of Akhil's team. And Dharani, and everybody else who also, I'm sure, has played visible and invisible roles in this. I would also like to acknowledge the presence of Special Chief Secretary who is in charge of Animal Husbandry, Dairy and Fisheries, Shri Adhar Sinha. I would also... मरकज़ी वज़ीर सक़ाफ़त जी किशन रेड्डी ने हफ्ते को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर गंगा पुष्करला यात्री पूरी काशी अयोध्या भारत गुरु टूरिस्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बात करते हुए रेड्डी ने कहा कि भारत को गुरु ट्रेनों के आगाज़ के साथ हिंदुस्तानी रेलवे मुल्क के अंदर और बैरूनी मुल्क से आने वाले अक़ीदतमंदों को हिंदुस्तानी के मतमौल सक़ाफ़ती वरासत और शानदार तारीख़ी मकामात को दिखाने का एक बेहतरीन मौका फ़राहम कर रहा है। वज़ीर सेहत ने कहा कि हरिद्वार ऋषिकेश के बाद भारत गुरु टूरिस्ट ट्रेन 10 जून से 18 जून तक सयाहों को माता वैष्णो देवी ले जाएगी। मिस्टर रेड्डी ने कहा, साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर ने कहा है कि इस ट्रेन में मुसाफिरीन के लिए मुनासिब सहूलियात फराहम की गई है। इस सहूलत से फ़ायदा उठाकर मुसाफिर मुल्क की सक़ाफ़त से रोशनास हो सकेंगे। इससे सियाहत की तरक्की को भी फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन दोनों तेलुगु रियासतों के अक़ीदतमंदों को एक मुनफरिद मौका फ़राहम करती है। మిత్రులందరికీ నమస్కారం। భారత ప్రభుత్వము రైల్వే శాఖ ద్వారా గత కొన్ని రోజులుగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రాచీన ప్రాంతాలను అదేవిధంగా పుణ్యక్షేత్రాలను మరి ప్రత్యేకంగా దర్శించుకునేటువంటి కార్యక్రమం ప్రజలకు కల్పించాలనేటువంటి ఒక పవిత్రమైనటువంటి ఉద్దేశంతో గతంలో బుద్ధ సర్కిట్ పేరు మీద, రామాయణ సర్కిట్ పేరు మీద, శ్రీకృష్ణ సర్కిట్ పేరు మీద, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ సర్కిట్ పేరు మీద ఈ రకంగా అనేకమైనటువంటి పుణ్యక్షేత్రాలను కలిపేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు మనకందరికీ తెలుసు గంగా పుష్కరాలు అవుతా ఉన్నాయి. ఈ గంగా పుష్కరాలకు ఎక్కువ భాగం అంటే 70% ప్రజలు మన ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే వెళ్తారు. ఇది ప్రత్యేకంగా తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి పుష్కరాలు, గంగా పుష్కరాలు. కాబట్టి ఈ గంగా పుష్కరాలు కూడా దర్శించుకోవాలనేటువంటి అందరికీ ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళకు ఎంబడుండి తీసుకుపోవడం కానీ, సీనియర్ సిటిజన్స్ కానీ, ఇతర మహిళలు కానీ, పిల్లలు కానీ వెళ్ళాలంటే, విడిగా వెళ్ళాలంటే ఖర్చు ఎక్కువగా ఉంటుంది, కష్టంగా ఉంటుంది. ఈరోజు పూర్తిగా రైల్వే శాఖనే ఈ యొక్క ఏఆర్సిటిసి ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ ద్వారా పూర్తిగా ట్రైన్ ఎక్కి నుంచి మళ్ళీ సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లో దింపేంత వరకు కూడా ఈ యొక్క ప్యాసింజర్ యొక్క ఈ యొక్క భక్తుల యొక్క పూర్తి బాధ్యత రైల్వే శాఖనే తీసుకుంటుంది. వాళ్ళకు భోజన ఏర్పాట్లు కానీ, వసతి ఏర్పాట్లు కానీ,
ట్రైన్ దిగిన తర్వాత పుణ్యక్షేత్రాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్లేటువంటి మరి ఆ యొక్క రవాణా సౌకర్యం కానీ అన్ని రకాలుగా ఈ యొక్క రైల్వే శాఖ తీసుకుంటుంది. ఈ ట్రైన్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది ఈ రోజు నుంచి 7వ తేదీ ఇక్కడికి చేరుకుంటుంది. बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली टी राजा सिंह ने इन इत्तलात को बईद अज हकीकत करार दे दिया कि वो बीजेपी से अलहदगी इख्तियार करने से मुतालिक गौर खौस कर रहे हैं. तेलुगु देशम पार्टी में शमूलियत के इम्कानात के मुतालिक ज़राए अबलाग में शाये खबरों पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए रुकन असम्बली गोशा महल ने कहा वो बीजेपी में ही बरकरार रहेंगे. शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के बाद पार्टी से मुअत्तल कर दिए जाने वाले राजा सिंह ने कहा अगर पार्टी उनकी मुअत्तली को बर्खास्त नहीं करती तो ऐसी सूरत में वह अमली सियासत से दूरी अख्तियार कर लेंगे, हिंदू मज़हब के तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की के लिए ख़ुद को वक्फ़ कर देंगे. दूसरी तरफ राजा सिंह ने तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू पर तारीफ़ों की बारिश कर दी. उन्होंने कहा कि तेलंगाना की हकीकी तरक्की चंद्रबाबू नायडू की मरहूमीन मिन्नत है. केसीआर ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया. राजा सिंह ने पेश कयासी की कि आंध्र प्रदेश में आइंदा असम्बली इंतखाबात में चंद्रबाबू नायडू को फिर से एक बार इक़्तिदार हासिल होगा. उन्होंने कहा कि वो चंद्रबाबू नायडू को इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखते हैं, उनका बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं. चंद्रबाबू नायडू ने ही उन्हें सियासी ज़िंदगी अता की है. उन्होंने कहा कि एहतराम करना और सियासत करने में फ़र्क है. मेरी दिली ख्वाहिश है कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी को दोबारा इक़्तिदार हासिल हो. ताहम मेरा मानना है कि मेरा जहन सिर्फ बीजेपी के नज़रियात से ही मेल खाता है और मेरी हमेशा ख्वाहिश रहेगी कि बीजेपी में मैं बरकरार रहूं. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక కార్యక్రమంలో నేను ఉండే ఈవినింగ్ 6 o'clock నుంచి నైట్ 1 గంట వరకు ఆ సభలో ఆ ర్యాలీలో ఉండే మంచి కార్యక్రమం ఉండే. ఒక వార్త నిన్న క్లిక్ అయింది, రాజా సింగ్ చేరుతున్న టీడీపీలో. అట్లాంటి ఏం ఆలోచన లేదు, ఎందుకంటే నేను టీడీపీలో పోవాలని ఎప్పుడు కూడా ఆలోచన చేయలేదు. నా మెంటాలిటీకి ఏ పార్టీ కూడా మ్యాచ్ కాదు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ నేను ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేది నా హిందూ ధర్మం గురించే కార్యక్రమం చేయాలని, ధర్మ సేవనే చేయాలని నా ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది. నాలాంటి వ్యక్తులకి ఏ పార్టీలు కూడా తీసుకోరు, బీజేపీ తప్ప. ఓకే, సస్పెన్స్ అయినా ఇంకా ఎప్పుడు సస్పెన్షన్ తీసేస్తారు అది ఇంకా చెప్పలేం. కానీ బండి సంజయ్ గారు, భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారులు నా ఎంబడున్నారు, టెన్షన్ పడకు మేము ఉన్నాం అని ఒక హామీ, పెద్ద హామీ వాళ్ళు ఇస్తారు. కేంద్ర మంత్రులు ఉన్నారు, నేనున్నాం నీ ఎంబడిని, చాలా మంచి ఇప్పుడు నాకు చేస్తారు. నిన్న కూడా ఒక కేంద్ర మంత్రి కార్యక్రమమే ఉండే, వాళ్ళ కార్యక్రమంలోనే వెళ్ళిన ప్రహ్లాద్ పటేల్ గారు. నా ఆలోచన టీడీపీలో వెళ్ళాలని ఎట్లా. वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने कहा हालिया चंद दिनों के दौरान रियासत के कई अजला में हुए बेमौसम बारिश के नतीजे में रियासत में 9.50 लाख एकड़ फसलों को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने बारिश से मुतासिरा इलाकों को जनगांव ज़िले की नागीरेड्डी पल्ली गांव में मुआयना किया. उन्होंने इस मौके पर कहा कि किसानों को मुआवजे के तौर पर गुज़िश्ता 9 सालों से 1 रुपये भी नहीं दिया गया. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासत के 23 अजला में फसलों को नुकसान पहुँचा है. उन्होंने कहा कि गांव में 1800 एकड़ चावल ज़ाय हो गया. उन्होंने के चंद्रशेखर राव हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए पूछा कि क्या किसान हुकूमत का यही मतलब है. उन्होंने पूछा कि किसानों को क्या यही भरोसा दिया गया है. उन्होंने पूछा कि चंद्रशेखर राव किसान के साथ कैसे इंसाफ कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनके वालिद राजशेखर रेड्डी के दौर हुकूमत में ज़राअत एक त्यौहार की तरह था. उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में 14,000 करोड़ रुपए की फसल ज़ाय हो चुकी है. हुकूमत कम अज़ कम इस साल मुआवजा अदा करे. ऐसा लगता है कि तेलंगाना में बीजेपी फ़िरका वाराना मुनाफरत को हवा देने में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती ताकि हिंदू वोटों को मुत्तहिद करते हुए आइंदा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जा सके. कभी मसाजिद की खुदाई करने की बात की जाती है तो कभी उर्दू ज़ुबान में इम्तहान मुनक़्क़िद करने की मुखालफत. इसी तरह सोशल मीडिया पर नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है. ताज़ा तौर पर बीजेपी ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये सेक्रेटेरिएट है या मस्जिद? क्या तेलंगाना की नई सेक्रेटेरिएट में कोई सकाफ़ती रौनक है? ये मस्जिद दिखाई दे रही है. ये तामीर मजलिस को खुश करने के लिए की गई है. इसमें काकतिया
शाता वहाना हुक्मरानों की फ़न तामीर का कोई अक्स नहीं है, जिस पर सोशल मीडिया सारिफीन ने बीजेपी की इश्ताल अंगेज़ पोस्ट पर अपनी शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। जबकि BRS पार्टी के कारगुजार सदर वज़ीर तारक रामा राव के नाम पर पाई जाने वाले एक ट्विटर अकाउंट ने इस पोस्ट के जवाब में बीजेपी से इक़्तिदार वाली तीनों रियासतों गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के असम्बलियों की इमारतों की तस्वीर पोस्ट किए। इन इमारतों पर गुंबद नमा खूबसूरत डिज़ाइन है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस अजय रस्तोगी से मुतालबा किया है कि रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की तरफ से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के ख़िलाफ़ दाखिल की गई अर्ज़ी की जल्द अज जल्द जाँच की जाए। कविता ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ज़ी दायर की थी जिसमें इस बात की वजाहत मांगी गई थी कि आया ख़वातीन को तहक़ीक़ात के लिए ED के दफ्तर बुलाया जा सकता है। कपिल सिब्बल ने बेंच से अपील की कि वो कविता के अर्ज़ी पर पीर को समाअत करे। दूसरी तरफ जस्टिस रस्तोगी की बेंच ने कहा वो इस दरख्वास्त पर गौर करेगी। सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता माह कविता की तरफ से ED के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसके बाद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी चिदम्बरम की इससे कबल की दरख्वास्त को टैग किया जिसमें ख़वातीन को ED की दफ्तर में तहक़ीक़ात के लिए बुलाया गया था। कविता ने अपने अर्ज़ी में एक नई दरख्वास्त दाखिल की है। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले की तहक़ीक़ात के लिए एक खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT तश्कील देने का मुतालबा किया गया। कविता की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और विक्रम चौधरी ने बहस की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने ED की तरफ से अदालत में पेश हुए। कविता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि ED ख़वातीन के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कविता ने कहा PMLA एक्ट की दफ़ा 50 के तहत उन्हें ज़ाती तौर पर पेश होने के लिए जारी किए गए नोटिस CRPC की दफ़ा 160 के ख़िलाफ़ है और रिकॉर्डिंग के दौरान वकील की मौजूदगी में पूछताछ के सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग का हुक्म जारी किया जाना चाहिए। उनके फ़ोन को जब्त करने और ज़ब्ती की जारी करदा नोटिस की मनसूखी के साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि फ़ोन के ज़ब्त किए जाने को गलत करार नेज़ इस दरख्वास्त को नलिनी चिदम्बरम बमुकाबला इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट केस के साथ मुंसलिक करे। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की बेंच ने अर्ज़ी को समाअत के लिए कबूल कर लिया। कविता पहले ही 3 बार ED के सामने पेश हो चुकी है। रियासती वज़ीर इमारत प्रशांत रेड्डी ने आज कहा कि 30 अप्रैल को रियासत के लिए नए डॉक्टर BR अम्बेडकर के इफ्तिताह की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि इतवार से नए सेक्रेटेरिएट से रियासत के नज़्म नसक व दीगर उमूरों की अंजाम दही का आगाज़ होगा। आज प्रशांत रेड्डी ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंजनी कुमार, पुलिस कमिश्नर ऑफ हैदराबाद CV आनंद के हमरा सेक्रेटेरिएट की नई इमारत का मुआयना किया। प्रशांत रेड्डी ने कहा तेलंगाना के अवाम को बेहतरीन हुक्मरानी फराहम करने के मकसद से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 27 जून 2019 को नए सेक्रेटेरिएट की इमारत का संग बुनियाद रखा था। हिंद फारिस फ़न तामीर के तर्ज पर इंतहाई असरी तकाज़ुब से लैस सेक्रेटेरिएट के नई इमारत पर हाई कोर्ट की इमारत की तरह गुंबद तामीर किए गए। 2 गुंबदों पर कौमी निशान की अलामत वाले शेर के चेहरे लगाए गए हैं। ये जुमला 34 गुंबद तामीर किए गए और सबसे ऊंचे 165 फीट की गुंबद पर कौमी निशान की अलामत लगाई गई। रेड्डी ने कहा सेक्रेटेरिएट की नई इमारतों में पानी की सरबराही के लिए हाइड्रोनिमाइक निज़ाम नस्ब किया गया है। इमारत पर तामीर करदा और हेड टैंक से इंतहाई नागुज़ेर हालात में ही पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। बरसात के पानी के ज़ख़ीरे के लिए ज़ेर ज़मीन में सैंप तामीर किया गया है। बरसात के पानी के एक एक कतरे को भी ज़ाय होने से बचाने पानी को सीधा सैंप में पहुंचाने का इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सेक्रेटेरिएट की नई इमारत में 2 बड़े फव्वारे लगाए गए हैं। ये फव्वारे 28 फीट ऊंचे और 58 फीट अराजी पर मुहित हैं, जिनको रेड सैंड स्टोन से तामीर किया गया है। उन्होंने कहा कि यह इमारत हिंद दक्कनी काकतिया तर्ज़ तामीर का बेमिसाल नमूना है। డీకి రమ్మనాలి వాళ్ళని డీకి రమ్మని డీ ఫస్ట్లో రమ్మని నేను పోతున్నాను కదా కారు మీద అందుకోసం తిరిగినా ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం ఇది ఎక్కిన నా కారు బయటనే ఉంటుంది లోపల కూడా రాదు ఇట్లా అవుతున్నాయి
నిన్ననే బీటీ వేసిన, రాత్రి బీటీ వేసిన, పొద్దుగాలంతా తిరిగే వరకు మొత్తం కట్టమైంది. ఇప్పుడు చేయరా సార్? ఒక మెయిన్ సీనా నెక్స్ట్ కదా, ఇళ్ళకల్ కాదు కదా, నెక్స్ట్ పార్ట్ ముందుకు రా, మీరు ముందుకు వచ్చేసి मुस्तक़र निर्मल में एक घर में आग लग गई, जिसके नतीजे में शादी के लिए रखा गया सारा सामान जलकर खाकसर हो गया। तफसीलात के मुताबिक निर्मल शहर के वार्ड नंबर 23 मोहल्ला हनुमान जी गुट्टा में रात के वक्त अतिया बेगम नामी खातून के मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब मकीन शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए थे। पड़ोसियों ने फौरी आकर आग बुझाने का काम किया और फायर ब्रिगेड इंजन को तलब किया। तब तक मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गया था। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से बास मकान का पूरा सामान, मकान के दस्तावेज़ात, कपड़े, खाने पकाने के सामान के अलावा अतिया बेगम की लड़की के अनकरीब होने वाली शादी के लिए जमा शुदा रकम और सामान भी जलकर खाकसर हो गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही सदर नशीन बल्दिया निर्मल जी ईश्वर, मुतल्लिका वार्ड काउंसलर सैयद ज़हीर अहमद, नुमाइंदा रुकन बल्दिया एम प्रदीप, कांग्रेस अक़लियत कायदीन, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी चेयरमैन के अलावा कई दीगर अफराद ने आकर उनकी मदद की अपील की है और उन्होंने अहल खैर हज़रात से मुतासर ख़ानदान के लिए माली इमदाद करने की भी अपील की है। शहर हैदराबाद और मज़ाफ़ात के कई इलाकों में आज सुबह गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई। सिकंदराबाद में मूसलाधार बारिश के दौरान एक 4 साला बच्ची मेन होल में गिर गई, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। लड़की दूध के लिए पैकेट लेने के लिए घर से निकली थी, तहम वह अचानक मेन होल में गिर पड़ी और बह गई। मकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बल्दिया के अमले की मदद से लाश को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली गई। शहर के साथ साथ पुराने शहर के भी कई इलाकों में शदीद बारिश हुई। बारिश के दौरान दरख्त भी गिर पड़े। इस दौरान रियासत भर में बारिश के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने हैदराबाद समेत कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आसिफ जहाँ सामिन, नवाब मीर बरकत अली ख़ान, मुकर्रम जहाँ बहादुर की तीसरी अहलिया प्रिंस जमीला और उनकी दुख्तर प्रिंस ज़ेरीन की हैदराबाद में आमद पर उन्होंने तारीख़ी मक्का मस्जिद पहुंचकर मरहूम मुकर्रम जहाँ बहादुर की मज़ार पर चादर गुल पेश किया और फातिह ख़ानी की। तुर्की नज़ात प्रिंस जमीला मरहूम आसिफ जहाँ सामिन की तीसरी अहलिया हैं। मुकर्रम जहाँ के इंतकाल के बाद पहली मरतबा वो अपने दुख्तर के साथ हैदराबाद पहुँची और उन्हें खराज पेश किया। ख़तीब मक्का मस्जिद मौलाना हाफिज़ रिजवान कुरैशी ने दुआ की और जनाब अब्दुल क़दीर सिद्दीकी सुपरिटेंडेंट मक्का मस्जिद ने तमाम इंतज़ामात किए। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाई शर्मिला ने गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन के नाम एक मकतूब तहरीर किया है, जिसमें TSPSC परिचय सवालात अफशा स्कैम में IT डिपार्टमेंट के किरदार के बारे में इस IT की तहक़ीक़ात में हुए पेश रफ्त से मुतालिक रिपोर्ट हासिल करने की दरख्वास्त की गई। अपने मकतूब में शर्मिला ने गवर्नर से दरख्वास्त की कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के मुताबिक तेलंगाना के महकमे IT और उसके कुछ अहदेदारों के किरदार की तहक़ीक़ात पर इस IT से पेश रफ्त रिपोर्ट तलब की जाए। उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के मुताबिक कंप्यूटर सोर्सेज दस्तावेज़ात में छेड़छाड़ और सिस्टम्स की हैकिंग संगीन जुर्म है। उन्होंने मज़ीद तहरीर किया कि वो गवर्नर से ये भी चाहती है कि वो इस IT से तहक़ीक़ात की पेश रफ्त का इंकिशाफ करने पर ही वसाहत तलब करें। आखिर में सुर्ख़ियाँ एक बार फिर। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रवानाओं ने जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले पहलवानों की हिमायत। कहा,
हम उस वक्त जश्न मनाते हैं जब ये मुल्क के लिए मेडल्स लाते हैं। ये इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इनके साथ हैं। तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौके, रियासत की 9 सालों में हैरत अंगेज तरक्की, तारक रामाराव का बयान। मरकजी वजीर सकाफत जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर गंगा पुष्करला यात्रा पूरी, काशी अयोध्या भारत गुरु टूरिस्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाइस शर्मिला का बयान, कहा हालिया चंद दिनों के दौरान रियासत के कई अजला में हुए बेमौसम बारिश के नतीजे में रियासत भर में 9.50 लाख एकड़ फसलों को हुआ नुकसान। निर्मल के एक घर में आग लग गई, जिसके नतीजे में शादी के लिए रखा गया सामान जलकर खाकसर। तेलंगाना में बीजेपी फिरका परस्ती को दे रही है हवा। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ये सेक्रेटेरिएट है या मस्जिद। शहर हैदराबाद और मुज़फ्फराबाद के कई इलाकों में आज सुबह गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के सबब एक 4 साला बच्ची की हो गई मौत। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827